How are you all? I hope this video finds you well. So students, this is Dr. Meenakshi, your chemistry teacher, and today we are going to study conductance measurement. So students, we have already studied about the conductors, various type of conductors. Among them we have studied about the metallic conductor, in which electrons were responsible for the flow of electricity, and in electrolytic conductor ions were responsible for the flow of electricity. Okay, so in this video we are going to study about the various terms which are related to conductance. So we can say that now we are dealing with the conductance measurement. So student, let's get started without wasting any more time. So students, according to Ohm's law, you know that resistance is directly proportion to, according to Ohm's law, resistance is directly proportion to length upon area. Right? Here resistance is a hurdle. It is a hurdle in the flow of current. Right? So hurdle or the resistance in the flow of current is directly proportion to the length and inversely proportion to the area of cross section. Right? So here L is the length. Here is L is the length, that is length of particular wire or any metal. Okay, and over here A is area of cross section. Okay, whatever metal wire we are taking, so the area of cross section of that particular wire or metal is denoted by A. And here R is resistance. R is resistance, and resistance means hurdle in the flow of current. It is a hurdle in the flow of current. So you can write it as a hurdle in the flow of current. Okay, so hurdle is directly proportion to the length and inversely proportion to the area of cross section. Okay, so students, अगर हम proportion का sign हटाते हैं, if we remove the proportion sign, then we will get a new value over here. That value is known as resistivity. So R is equals to L upon A. On removing this proportion sign, you will get a new term which is resistivity. So over here this rho is known as resistivity, or you can say it as specific resistance. आप इसको resistivity भी कह सकते हैं या फिर specific resistance भी कह सकते हैं. ओके, तो अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी, तो आप क्या लिखेंगे? रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू R इंटू ए अपॉन एल. रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू, अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा? R जो है वो यहीं रहेगा, A यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और L डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो ये आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल चुकी है, और ये जो फॉर्मूला है नीचे वो रेजिस्टिविटी का या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है. नाउ स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, अगर जो लेंथ है वायर की वो 1 सेंटीमीटर है, अगर लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? आर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी. इन दैट केस रेजिस्टेंस विल बिकम इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी. तो इस तरीके से आप रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बता सकते हैं. तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? अगर हम इसको डिफाइन करते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से, तो रेजिस्टिविटी, you can say that resistivity of a conductor is the resistance. ये क्या है? resistivity resistance है. resistivity of a conductor is the resistance. कौन सी सिचुएशन में? resistance of 1 cubic centimeter, 1 cubic centimeter of conductor. Okay,
सो स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू दैट अगर इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन ले लीजिए आप, ये ले लीजिए, अगर L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, लेंथ 1 सेंटीमीटर का है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इन दैट केस रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? रेजिस्टिविटी के। तो आप डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को कि रेजिस्टिविटी किसके बराबर होती है? रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस है ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है आपको। तो देखिए, आपको रेजिस्टिविटी समझ में आ गई है, रेजिस्टेंस समझ में आ गया, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप समझ में भी आ गया है। ठीक है, कि कैसे हम इनको आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया है, रेजिस्टिविटी पढ़ लिया है, तो अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। सो लेट्स मूव टू दी कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। सो स्टूडेंट्स, ये 3 फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, हम फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर लेंथ और जो एरिया है, अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाती है। अगर रेजिस्टिविटी का हमको वैल्यू निकालनी है तो आप इसको यहीं रख दीजिए और बाकी सारी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। दैट इज रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, और जब एरिया और लेंथ 1 के बराबर है तब आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इक्वल हो जाता है। इसी वजह से हमने इसकी डेफिनेशन बोली थी कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चल रहे हैं जो कि है कंडक्टेंस। द नेक्स्ट टर्म इज कंडक्टेंस। ओके, कंडक्टेंस को C से भी डिनोट कर सकते हैं और काफ़ी बुक्स में इसको G से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों कंडक्टेंस ज़्यादा होगा अगर रेजिस्टेंस कम है, अगर हर्डल कम है तो वो कंडक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा। इसका मतलब अगर मैं कंडक्टेंस की बात कर रही हूँ तो कंडक्टेंस क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा रेजिस्टेंस के, राइट। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो G है वो है 1/R के बराबर। R की वैल्यू आपको पता है, R की वैल्यू क्या है? ρL/A। तो आप R की वैल्यू लिख दीजिए। R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/ρA/L, है ना। ये जो R की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको? 1/ρA/L। ठीक है, हमने ये R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है। तो इससे आपको क्या मिलेगा? देखो बच्चों, G की वैल्यू किसके बराबर मिल रही है? 1/ρ और A/L के बराबर। और बच्चों 1/ρ किसके बराबर होता है? 1/ρ कंडक्टिविटी के बराबर होता है। तो 1/ρ को आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे कंडक्टिविटी भी लिख सकते हो। तो G जो है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे K, 1/ जो रो है इसको हम K लिख देंगे और आपके पास यहाँ पे रहेगा A/L। ठीक है, तो यहाँ पे जो G वैल्यू, ये तो कंडक्टेंस है, और यहाँ पे जो K नया टर्म यूज किया है इसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अगर जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो हमने इसका एक फॉर्मूला पुट कर दिया है। इस फॉर्मूले में हमने R की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, R की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी है। तो हमें क्या मिलेगा? 1/ρ इन ब्रैकेट A/L। ठीक है, तो जो 1/ρ वैल्यू है इसको हमने कॉमन टर्म दे दिया है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। इसका मतलब कंडक्टिविटी किसके बराबर है? कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1/ρ। कंडक्टिविटी इसके बराबर है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, तो आप ये बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी मतलब K, कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टिविटी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है रेजिस्टिविटी से। ठीक है,
तो अब आपको देखो बच्चों, आपने एक नया फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, जी का फॉर्मूला मतलब कंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, आपने कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव कर दिया है। तो आपने कितने फॉर्मूलाज देख लिए, रेजिस्टेंस देख लिया है, रेजिस्टिविटी देख लिया है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। आफ्टर नोइंग ऑल दिस 4 टर्म्स वी आर गोइंग टू डील विद अ न्यू टर्म विच इज नोन एज सेल कांस्टेंट। तो बच्चों सेल कांस्टेंट मैं आपको यहाँ पे ही समझा देती हूँ, इसी बोर्ड पे ध्यान से देखिए। ये हमारे पास में लास्ट इक्वेशन मिली हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे इस कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकालना है तो हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी को इस साइड में रख देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा कंडक्टेंस इंटू एल अपॉन ए, कंडक्टेंस इंटू एल अपॉन ए। तो बच्चों ये जो एल अपॉन ए है यहाँ पे, ये जो एल अपॉन ए है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए। तो इस हिसाब से आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। जो कंडक्टिविटी है वो इक्वल्स टू है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए, ठीक है। तो आप रेजिस्टेंस के बारे में जान चुके हैं, आप रेजिस्टिविटी के बारे में समझ चुके हैं, आप कंडक्टेंस के बारे में समझ चुके हैं और आप कंडक्टिविटी के बारे में भी समझ चुके हैं। तो अब हम इन सब के फॉर्मूला समझ चुके हैं, तो अब हम इनकी सबकी यूनिट्स फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स सी द यूनिट ऑफ ईच टर्म। So students, these are the formula which we have derived, right? So ये resistance का formula है, this is the formula of resistivity, this is the formula of conductance and this is the formula of conductivity, ठीक है। ये तो नॉर्मल फॉर्मूले हमने जो डिराइव किए हैं, इसके अलावा भी आप रीअरेंज करके और भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। दिस इज द जनरल फॉर्मूला विच वी हैव डिराइव्ड, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। रेजिस्टेंस यूनिट इज ओम, आप इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। अगर आप रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें, रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें तो देखो ओम रेजिस्टेंस का तो है ही, ठीक है। एरिया अगर देखो आप रेजिस्टेंस की यूनिट लिखते हैं तो आप ओम लिखेंगे, एरिया के लिए आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ के लिए लिखेंगे आप सेंटीमीटर, राइट। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 1 है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखो आपको क्या मिलेगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा ओम सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास है रेजिस्टिविटी की यूनिट और ओम जो है वो यूनिट है रेजिस्टेंस की। अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। तो स्टूडेंट कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो होती है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब आप ये लिख सकते हैं ओम इनवर्स, ठीक है, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मो भी लिख सकते हैं। आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओम इनवर्स आप इसको मोह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी एक और यूनिट है जो है साइमन, ठीक है। एक और यूनिट है एसआई यूनिट होती है साइमन। तो यहाँ पे जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास है साइमन, ठीक है। तो आप इसको पर ओम भी लिख सकते हैं, मोह भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ पर ओम, या फिर साइमन। साइमन जो है बच्चों ये इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। अब अगर हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इससे आपको रेजिस्टिविटी की यूनिट पता है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम सेंटीमीटर। तो अगर हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इसको हम कप्पा बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज कप्पा, KAPPA, प्रोनाउंसिएशन को कप्पा है इसका सिंबल का। और ये हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो जब कंडक्टिविटी की बात कर रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है रेजिस्टिविटी की, और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम सेंटीमीटर। तो आप इसका उल्टा कर दीजिए तो आपको उसकी यूनिट मिल जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो मो सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसा यूनिट अगर यूज़ करेंगे तो आप लिखेंगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूनिट आपको याद करनी है। तो बच्चों रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है,
और ओम्स लॉ कहता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ अपॉन एरिया, जब आप प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो न्यू वैल्यू पुटअप करेंगे जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, तो जब आपको रेजिस्टेंस का यूनिट पता है ओम है, एरिया आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, लेंथ यू नो सेंटीमीटर में है, तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल, जब हमको रेजिस्टेंस पता है तो हम कंडक्टेंस की इट इज कंडक्टेंस, अगर आपको रेजिस्टेंस पता है तो आप कंडक्टेंस का फॉर्मूला यूनिट इजीली निकाल सकते हैं। कंडक्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है रेजिस्टेंस के, तो जो भी यूनिट रेजिस्टेंस की आप उसको इन्वर्स कर दीजिए। ठीक है, तो ओम का क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स या फिर मो या फिर ऐसा यूनिट आप साइमेंस भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके अलावा अगर हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इसका सिंबल हम के यूज़ करते हैं, इसको हम कप्पा बोलते हैं। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है रेजिस्टिविटी की। तो अगर जब आपको रेजिस्टिविटी की जब आपको रेजिस्टिविटी के बारे में पता है कि इसकी क्या यूनिट है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इन्वर्स करना है। तो आपको पता है जब ओम सेंटीमीटर है, जब ओम सेंटीमीटर है तो आप क्या लिख देंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को आप मो भी लिख सकते हैं, तो मो सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा ही में लिखेंगे तो साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो अगर आपको ये दो यूनिट्स पता है ना बच्चों, तो बाकी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो ये यूनिट्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा कंडक्टेंस टॉपिक कवर हो गया है। तो हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। सो लेट्स गो थ्रू द रिव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द रिव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बच्चों मैंने आपको कहा था कंडक्टेंस का मतलब होता है फ्लो ऑफ करंट, सब्सटेंस विच अलाउ दी फ्लो ऑफ करंट। जो भी सब्सटेंस फ्लो ऑफ करंट अलाउ करता है उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इस फिनोमिना को हम कंडक्टेंस बोलते हैं, और सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस विच अलाउ, इस फिनोमिना को हम कंडक्टेंस बस बोलते हैं, लेकिन सब्सटेंस जो अलाउ करता है फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, ठीक है, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंडक्टर। तो सब्सटेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंडक्टर। ठीक है, अब बच्चों कंडक्टर समझ में आ गया। अब कंडक्टर्स के दो टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर। द फर्स्ट वन इज मेटेलिक कंडक्टर एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर के अंदर सारे मेटल्स आते हैं एंड फ्यू नॉन मेटल्स, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, these are the example of metallic conductors, and in metallic conductors electrons are responsible for the flow of current, और electrolytes में ions responsible होते हैं for the flow of current। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में हमने कंडक्टेंस के जो मेजरमेंट पढ़ा है उसमें हमने डिफरेंट टर्म्स पढ़ी। तो फर्स्ट टर्म थी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के हिसाब से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ अपॉन एरिया। अगर हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो रेजिस्टिविटी आ जाएगा, तो आर इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। तो जो रेजिस्टिविटी है वो इक्वल्स टू है आर इंटू ए अपॉन एल। आपको सिर्फ रीअरेंजमेंट करना है। आपको रेजिस्टिविटी मिल चुकी है, जब रेजिस्टिविटी मिल चुकी है और रेजिस्टेंस मिल चुका है तो हम कंडक्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है रेजिस्टेंस का। और अगर हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है रेजिस्टिविटी के। ठीक है, और हमने इसकी यूनिट पढ़ी थी कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम्स, राइट। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होता है ओम सेंटीमीटर। कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम इनवर्स, और जो कंडक्टिविटी की यूनिट है वो होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। उसके अलावा हमने एक और टर्म पढ़ा था जो था सेल कांस्टेंट। तो जो सेल कांस्टेंट होता है वो इक्वल्स टू होता है एल अपॉन ए के। ठीक है, और अगर हम इस कंडक्टिविटी के साथ में सेल कांस्टेंट को बताएं तो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट के। तो बच्चों ये पूरा ब्रीफ है जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो आई होप आपको ये कंडक्टेंस टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है।
तो जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक वंस अगेन, ठीक है, और कोई भी अगर आपको डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द discussion box. So for now, please take care of yourself and have a good day.